Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program which gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock market. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331 4444, 23717106 and 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashiam, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंच के एक और कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों पर नजर डालेंगे, शेयर मार्केट की बात करेंगे, लेकिन आज रविवार है और आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, किस तरीके के फंड का चुनाव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप तमाम अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23770106। किसी भी नंबर पर फोन करें, म्यूचुअल फंड से संबंधित अपने सवाल पूछें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जाने माने एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। The top stories. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone for redevelopment of 508 railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme. Foreign investors pump in nearly 47,000 crore rupees into the Indian equities market in July, and global crude oil prices rise for the 6th straight week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने में भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 47,000 करोड़ रुपए निवेश किए और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में लगातार छठे सप्ताह बढ़त। Well, let's start off with the big story that we are tracking for you this evening. Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone for the redevelopment of 508 railway stations at a cost of over 24,470 crore rupees under the Amrit Bharat Station Scheme across the country through video conferencing. Speaking at the event, he said each Amrit station will be a symbol of city's modern aspirations and ancient heritage. He informed that around 1,300 major railway stations in India will now be developed as Amrit Bharat railway stations, of which work on the redevelopment of 508 stations has begun today. Mr. Modi said around 25,000 crore rupees will be spent on the redevelopment of these stations, which will give a major boost to the railways infrastructure. Mr. Modi said that the budgetary support for the railways has been increased by 5 times as compared to 2014, which is now at 2.40 lakh crore rupees. He said that it is the beginning of a new era of development in the history of Indian Railways, which will benefit all the common citizens of the country. Mr. Modi said India's credibility has increased at the global level and the world's attitude towards India has also changed. These 508 stations are spread across 27 states and union territories. This includes 55 stations each in Uttar Pradesh and Rajasthan, 49 in Bihar, 44 in Maharashtra, 37 in West Bengal, 34 in Madhya Pradesh, 32 in Assam and 25 in Odisha, among others. काशीनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेन्नई से हैं। काशीनाथ जी, स्वागत आपका। काशीनाथ। Yes, good
मॉर्निंग। या गुड इवनिंग, सवाल पूछ लें आप। सर मेरा सवाल ये है कि जो धीरेन्द्र सर से कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटर्स का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है वो यूएस मार्केट में निवेश करता है, वो किस तरह का मतलब मिड कैप कैटेगरी में आता है या स्मॉल कैप या लार्ज कैप या फ्लेक्स कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद जी। एक तो वो जो फंड है वो मल्टी कैप इंटरनेशनल फंड है, बल्कि आप उसको ट्रूली ब्लेंडेड फंड कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ ओरिएंटेड वैल्यू पोजीशंस भी होते हैं उसमें। पर ये अगर और उसको कैपिटलाइजेशन के नजरिए से देखिएगा और इंडिया में बैठ के देखिएगा तो वो लार्ज कैप फंड है। यस जी, लेकिन वो निवेश के ख्याल से अगर 3 साल 4 साल के आप टाइम पीरियड को लेकर चले तो कैसा है धीरेन्द्र? नहीं, हमेशा से आपको अगर अपना पैसा स्प्रेड करना है तो इस फंड में पैसा लगाना चाहिए, और ये फंड अच्छा है। आपके पास 4-5 ही विकल्प है जो अमेरिकी बाजार में आपको निवेश देते हैं। नैस्डैक 100 उसमें काफी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि अमेरिकी बाजार का जो फ्रंटल चीज है वो है टेक्नोलॉजी, और ये एक टेक हेवी इंडेक्स है। लेकिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड भी टेक हेवी ही है, या अगर उसकी लीडिंग पोजीशन आप देखेंगे तो हार्डली कोई ऐसा यूएस डोमिसाइल्ड फंड होगा या यूएस में इन्वेस्ट करने वाला फंड होगा जो टेक्नोलॉजी हेवी ना हो। Right. Let's move on and take our next caller. We have Animesh joining us from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. Question, sir, how far can mutual fund contribute to the growth of macroeconomy and microeconomy? Because microeconomy and macroeconomy are in great fund. And what the role can mutual fund play to the growth of each microeconomy and macroeconomy? Thank you, sir. Yes, Dhirendra, what would you say? I would say that I can only guess. This is not my area of understanding, and I don't really focus on this. I focus on very petty things about ensuring a good economy for individuals who want to invest. But I can tell you, based on my recent experience or recent observation, one is that the microeconomy, it helps in a sense that it has proved to be a very effective vehicle to channelize household savings into productive assets. And on a macroeconomy, we have seen the last 2-3 years it provided great stability. When foreigners were pulling their money out of the market, domestic investors were continued putting their money, and that resulted in great stability to our financial market. So that has turned out to be a great bonanza, or exceptional thing, and quite a favorable thing in recent past. We had similar kind of exodus in 2008, and our market virtually collapsed. It collapsed by 60-65% on our main index. In the last 2-3 years, when FIIs were pulling out, we were not hurt at all. So that's the real impact on the macroeconomy. बिल्कुल, और हमारा जितना वास्ट डोमेस्टिक बेस है ये एक तरीके से बहुत ही संबल रहता है मार्केट के लिए, एक बहुत भरोसे वाली बात है। अगले कॉलर एसपीएस जैन नोएडा से जुड़े हुए। जैन साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें आप। हाँ, नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी भी नमस्कार। नमस्कार। जब धीरेन्द्र जी बोलते हैं कि अपना स्टेबिलिटी के लिए कुछ हिस्सा डेट फंड में लगाइए, से 1/3, तो अगर मेरा पैसा हाइब्रिड फंड्स में लगा है तो उसका कितना हिस्सा डेट फंड में माना जाए, और जो गोल्ड में लगाया हुआ है उसको डेट फंड माना जाए या इक्विटी फंड माना जाए? गोल्ड कभी कभी गिरता भी है और इक्विटी की तरह गिरता भी है, और गोल्ड में उस तरह का लोगों की उम्मीद होती है। सोना अगर आपके पास घर में है तो आपकी उम्मीद होती है कि 15 साल 20 साल में वैल्यू प्रिजर्व कर पाएगा। पर जब से बाजार के जरिए या फाइनेंशियल फॉर्म में आप गोल्ड खरीदने की शुरुआत हुई है, तब से कई बार ऐसा 20-25% सालाना गिरावट सोने में देखा गया है पिछले 10-12 साल में। तो उस नजरिए से आप ये उस तरह का सेफ हेवन नहीं है जिस तरह का फिक्स्ड इनकम साबित हुआ है। फिक्स्ड इनकम में भी आपको नुकसान होता है, लेकिन वो गिरता है 1-1.5% और हर रोज बढ़ता रहता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो फिक्स्ड इनकम का रोल है वो अभी भी कारगर है। और आपका जो पहला सवाल था कि
हाइब्रिड फंड के डेट एलोकेशन को कैसे देखा जाए, इसको आप प्रोपोर्शनेटली देखिए। अगर आपका 100 रुपया लगा हुआ है, जिसमें से 20 रुपया अगर आपका हाइब्रिड फंड में लगा हुआ है, तो आप समझिए कि 7 रुपया आपका डेट में लगा हुआ है। और इस चीज को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो वैल्यू रिसर्च के पोर्टफोलियो ट्रैकर में माई इन्वेस्टमेंट्स में अपना अकाउंट स्टेटमेंट, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार से मिलता है, वो अपलोड कर दीजिए और वहां पे आपको आपका एसेट एलोकेशन दिख जाएगा कि आपका कितना पैसा डेट में लगा हुआ है। वहां पे अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी डाल सकते हैं, पीपीएफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल नजरिए से देखना चाहिए कि पूरा पैसा आपका अगर जो 100 रुपया है तो उसका कितना पैसा पीपीएफ में लगा हुआ है, कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, कितने पैसे का बॉन्ड है, और ये सब फिक्स्ड इनकम है। उसके अलावा ये जो माई इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो एनालिटिकल टूल है, वो आपको बता देता है कि और भी जो इनडायरेक्ट तरीके से आप फिक्स्ड इनकम होल्ड करते हैं, चाहे वो बॉन्ड, चाहे वो हाइब्रिड फंड में हो या किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में हो, या बहुत सारे इक्विटी फंड्स में भी कई बार 10-15% फिक्स्ड इनकम होता है, तो वो भी एग्रीगेट करके आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितना फिक्स्ड इनकम में है। और 1/3 रहे तो आप निश्चिंत रहेंगे कि बाजार जब धड़ाम से गिरेगा तो आपका पैसा उस रफ्तार से नहीं गिरेगा। Right. Let's move on and take our next caller. We have Brijesh joining us from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, Yes, Brijesh. Go ahead. Put your question. नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो कोई भी फंड खरीदे, उस फंड में उसका डेब्ट और इक्विटी का कैसे एलोकेशन किया गया, वैसे कैसे पता चल जाएगा किसी भी फंड का इन्वेस्टमेंट, और लिक्विड फंड का उसका इनकम टैक्स में क्या इम्पैक्ट है, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या? Okay. Fine. Yes, Dhirendra. जी, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फैक्ट शीट हर महीने उपलब्ध कराया जाता है। आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के वो फैक्ट शीट देख सकते हैं, या हमारे जैसे वेबसाइट पे valueresearchonline.com पे आप उस फंड को का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं कि उस फंड का कितना पैसा इक्विटी में लगा है, कितना डेट में लगा है, कितना कैश और इक्विवेलेंट में लगा है, इक्विटी वाला पैसा किस किस शेयर में लगा हुआ है, बॉन्ड वाला पैसा, फिक्स्ड इनकम वाला पैसा किस किस बॉन्ड्स में लगा हुआ है। ये सारी जानकारी आपको अपडेटेड तरीके से हर महीने रिवाइज होती है रहती है, क्योंकि फंड एक जीवन चीज है। हर महीने हर रोज म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ कर रहा होता है और हर महीने के आखिरी में ये रिपोर्ट आपको किया जाता है या ये रिपोर्ट उपलब्ध है कि उस फंड की स्थिति क्या है। और अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो किसी भी म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड तो रोज शाम को कैलकुलेट होता है, पिछले दिन से अगले दिन में एनएवी में कितना बदलाव हुआ ये आप जान पाते हैं। एनएवी रोज कैलकुलेट होता है, पोर्टफोलियो हर महीने रिवील होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लिक्विड फंड या किसी भी डेट फंड से मिलने वाली सारी आमदनी आपकी आमदनी में जोड़ दी जाती है और वो टैक्सेबल है। वरुण दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, अपना सवाल पूछें प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे पूछना है, जो फंड अच्छा नहीं कर रहा है, जो हमारा साथ कई सालों से है, जैसा एक्सेस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सेस फ्लेक्सी कैप, एक्सेस फोकस, सर ये फंड काफी दिनों से अच्छा नहीं कर रहा है और इसको अगर हम चेंज क्या करना चाहिए ना, इसको समय देना चाहिए, क्योंकि ये अभी 2 स्टार 1 स्टार में आ गया फोकस और लॉन्ग टर्म इक्विटी। खासकर मुझे चिंता है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी लेके, तो इसको क्या करना चाहिए सर? और अगर हम इसको रीबैलेंस करें तो कैपिटल गेन्स का तरफ सोच के करें या ऐसे ही करें? थैंक यू। जी हाँ नहीं, हम भी काफी चिंतित है, क्योंकि इस फंड का एक तो इनका प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत चिंतित नहीं है, क्योंकि इन फंड्स का जो फोकस है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये क्वालिटी फोकस पोर्टफोलियो जो कि महंगा लगता है कि महंगा खरीदा गया, लेकिन 2-4 साल में ये मेजर कमबैक दिखता है। पहले भी ऐसी स्थिति हुई थी और दोबारा से एक्सेस के सारे फंड अपनी स्ट्रैटेजी को परस्यू करते हुए वापस अच्छा करने लग गए थे, और जो बीच का जो डिसअपॉइंटिंग टाइम था उस समय जो रिटर्न का रिलेटिव या तुलनात्मक तौर पे देखा जाए कि अगर वहां पे आपको कुछ उतना फायदा नहीं हो रहा था तो उससे ज्यादा कुछ रिकवर हो गया था जब इस फंड का समय आया। और फंड हर तरीके के म्यूचुअल फंड, अच्छे फंड भी उनका प्रदर्शन साइक्लिकल है।
लेकिन इन सब के बावजूद एक्सिस फंड में कुछ और भी बदलाव हो रहा है। कुछ फंड मैनेजर छोड़ के जा चुके हैं, कुछ टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, और पिछले सप्ताह ही एक लीडिंग जो इनके फंड मैनेजर थे वो छोड़ के गए हैं। इस वजह से हम और इस बारे में हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ये काफी बड़े फंड है। बहुत दिनों तक ये अच्छे फंड रहे हैं, हमारे रिकमेंडेशंस के पार्ट रहे हैं। तो अब अगर आपका पैसा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के लॉक इन पीरियड से निकल गया है तो इसको बेच देना चाहिए। All right. Let's take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ, हेलो सर। अच्छा सर, वो जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस में मैं प्लान, इंडोमेंट और राइटर। जितेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है। आप किसी ओपन एरिया या किसी विंडो के पास आके बात कर सकते हैं तो सिग्नल क्वालिटी बेटर हो जाएगी। अब पूछें जितेंद्र जी। हाँ, ये बोले जो लाइफ इंश्योरेंस में हम दो वर्ड सुनते हैं, इंडोमेंट और राइटर, वो क्या होता है? एंडाउमेंट और राइटर, धीरेन्द्र, ये शायद इंश्योरेंस से संबंधित सवाल है। जी हाँ, एंडाउमेंट एक तरह का पॉलिसी है। जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप इंश्योरेंस 3 फॉर्मेट में आपको मिलता है। एक, जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो प्योर इंश्योरेंस है, इसको टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। दूसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। जब भी आप कोई प्रीमियम देते हैं तो एक भाग जाता है, समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है एक म्यूचुअल फंड है, और कुछ एक डिफाइंड अमाउंट आपका इंश्योरेंस के लिए जा रहा है। और इंडाउमेंट प्लान जो है ये आमतौर पे आपको किसी तरह का अश्योरेंस देते हैं कि आप इसमें लगाइए और इससे आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर आपको कुछ हुआ तो, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको इतना पैसा लगाने की वजह से इसके मेजॉरिटी पे आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। वो एक अश्योर्ड रिटर्न होता है। जो दूसरा वाला है वो अश्योर्ड नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस जैसा होगा म्यूचुअल फंड की तरह, जितना होगा उतना मिलेगा। इंडाउमेंट प्लान में आपको एक अश्योरेंस रहता है कि कुछ नहीं होगा तो इतना मिलेगा, लेकिन उससे रिटर्न इतना कम मिलता है कि भले ही वो अश्योरेंस आपको बड़ा कंफर्टिंग लगे, आप निश्चिंत हो कि इतना मिल रहा है, लेकिन उसका वो इतना कम रिटर्न होता है कि आप शायद महंगाई से भी कम होता है, पोस्ट ऑफिस में भी उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। या अपने रिटर्न के नजरिए से अगर आप उसको देख रहे हैं तो आमतौर पे मेरी सलाह यही होती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। यूनिट से अच्छा इंश्योरेंस का एक टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी लीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी खासी जरूरत जो है इंश्योरेंस की वो पूरी हो पाएगी। और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड का निवेश कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, बॉन्ड खरीदिए, शेयर खरीदिए, जो भी करना हो अपने इन्वेस्टमेंट का, उसको इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो दोनों ही आपको अच्छा नहीं मिलता है। राइडर क्या होता है? हर इंश्योरेंस पॉलिसी एक राइडर के साथ आता है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही सिंपल है कि आपको, अगर आपने कोई टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस लिया या कोई यूनिट लिया तो आपको ये होगा तो इतना पैसा आपके परिवार को मिलेगा। लेकिन ये राइडर्स क्या होते हैं कि कोई क्रिटिकल इलनेस का एक राइडर है कि अगर आप ये राइडर का भी प्रीमियम देते हैं, और आमतौर पे राइडर उन्हें मिलता है जिनके पास कोई पहले से पॉलिसी। आप अगर राइडर लेते हैं तो क्रिटिकल इलनेस, आपको अगर कोई भी ऐसा क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ, भले ही आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो आपको 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जो कि आपकी जरूरत है, या कोई डिसेबिलिटी का राइडर है, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कोई डिसेबिलिटी का जो कि डेथ नहीं है या फेटलिटी नहीं है, तो उसके वजह से आपको एक अंडर रिटेन इंश्योरेंस होता है जो कि पोटेंशियल लॉस है, जिसकी वजह से अगर आपकी आमदनी की कमी हो जाती है, अगर किसी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है, तो ये राइडर बड़े कम दाम में एक आपको अच्छी सुविधा देते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन दे पाते हैं, जो कि आमतौर पे इंश्योरेंस में उपलब्ध नहीं होता है। और इसे लेना चाहिए अगर वो आपको मिल रहा है तो। जी हाँ, क्रिटिकल इलनेस मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका नुकसान भी हो गया लेकिन आप जीवित भी रह गए। Yeah, right. Let's move on and take our next caller. We have Ramesh joining us from Mumbai. Good evening, Ramesh. Hello, Ramesh. Do we have you online? Yes, sir. Good evening to all of you. Yeah. Good evening. Go ahead. Put your question. I have SBI Equity Hybrid Fund. How is the performance of it? Because for the last 2 years it has
not shown very good, Sorry, I didn't hear the name. SBI Equity Hybrid. Okay. Yes, sir. No, it's a good fund, and all these funds, when there was any good fund which looks good when you are buying, sometimes they don't do well on a relative basis. But if you look at it, how it has done overall, if you look at it in isolation, if you look at it on a full market cycle basis, I think it's a pretty good fund. Hold on with patience. और ये बता दें कि विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने में भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 47,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ये लगातार 5वां महीना है जब विदेशी निवेशक सकारात्मक रूप से भारतीय बाजारों में लगाते रहे हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान हर महीने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश आया है। इसके पहले अप्रैल में कुल विदेशी निवेश 11,631 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च में यह लगभग 8,000 करोड़ रुपए था। इस बीच विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक 2,034 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट से बाहर निकाले हैं, जबकि डेट बाजार में उन्होंने 1,151 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। योगेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, स्वागत। क्या सवाल है आपका? नमस्कार वीरेंद्र सर, नमस्कार एवरीवन। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक हमारा जो सवाल है जो हम आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे एक बार गोल्ड रश हुआ था तो कहते हैं कि जो सोने में लोगों ने उतने पैसे नहीं कमाए थे जितना सोने की खुदाई का सामान बेच के लोगों ने कमा लिए थे पैसे। ऐसे ही आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो एडवाइसेस दे रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोर्सेज बेच रहे हैं। उनसे किस तरीके से सावधान रहना चाहिए और क्या इस पर सेबी की गाइडलाइंस हैं? दूसरा सर हमारा सवाल है, हमारी जो मदर है वो कुछ जो डिपॉजिट मेजरली उनका सारा डिपॉजिट अब तक का फिक्स इनकम एसेट्स में होता हुआ आ रहा है, तो हमने कुछ शिफ्ट करा करके अगर कुछ गोल 2 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड और कुछ 2 साल से बाद के हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड में सजेस्ट किया है। तो क्या ये सही एडवाइस रहेगी? उनकी एज अराउंड 50 के आसपास होगी। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जरूरत के हिसाब से आप निवेश कीजिए। अगर आपका ये पैसा है जो कि आप चाहते हैं कंजर्वेटिवली बढ़े, लेकिन इससे आमदनी की जरूरत नहीं है, तो शायद बैलेंस्ड एडवांटेज अच्छा व्हीकल है, या आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि सारा आपका स्ट्रैटेजी बदल जाना चाहिए अगर आपको उस निवेश से इनकम चाहिए। अगर वो निवेश से आपको इनकम नहीं चाहिए लेकिन आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी से लेकिन रफ्तार अच्छी तरह बढ़े, तो ये अधिकतर वृद्ध लोगों का आज भारत में मिडिल क्लास लोगों का की जरूरत है, क्योंकि आपको कोई पेंशन मिल रहा होगा, आप परिवार में हैं और आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आपको चाहिए कि आप अपना पैसा इस तरह से निवेश करें कि बढ़े। और जहां तक बात है इन्फ्लुएंसर की, तो इन्फ्लुएंसर की नहीं, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। सेबी कोशिश कर रही है कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, और अगर कोई किसी तरह का एश्योरेंस है, किसी तरह का एडवाइस अगर ये देते हैं जिसके लिए इनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है, तो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, इनसे बचिए, इनको इग्नोर कीजिए, या अगर तो। और ये सलाह जो है ये इंटरटेनमेंट नहीं है। यूट्यूब पे आप सिनेमा देखते हुए किसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक वीडियो देख सकते हैं, बड़े लुभावने तरीके से, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से ये बोला जाता है, या अगर कोई परफॉर्म कर रहा है और बाजार के बारे में बता रहा है और आपको बता रहा है कि आप ट्रेड कीजिए, अमीर बनिए, और वो आपको बताएगा कि सबसे पहला रूल तो यही है कि अगर आपको कोई टू गुड टू बी ट्रू इट विल नॉट बी ट्रू। तो एक तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा कोई एश्योरेंस या ऐसा कोई लुभावना चीज बता रहा है कि यहाँ पे आप रातों रात अमीर बन सकते हैं और वो आपकी मदद करेगा, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि वो अपनी मदद खुद ही कर ले। और लोग, ये सलाह का जो कारोबार है, इसके बारे में आपको पूछना चाहिए कि कौन कहाँ से आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाजार में के बारे में भ्रम है कि बाजार में आप आते हैं तो आपके लिए जीतना जरूरी है और जीतने के लिए कोई ट्रिक होता है और ये ट्रिक किसी को पता है। इस धारणा की वजह से लोग इसके लपेटे में आ जाते हैं। इससे बचना चाहिए। आप अगर मार्केट मंत्र अगर कुछ सप्ताह सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये ट्रिक नहीं है। कमाइए, बचाइए और नियमित रूप से लगाइए। लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर की बातें सुन करके अच्छी तरह आप हंस सकते हैं. Right. And thanks, Dhirendra. Yeah, exactly. Market Mantra is a very objective program, and that gives an edge to
our listeners and investors in real time. Well, let's move on and take our next caller. We have Vikas joining us from Kolkata. Good evening, Vikas. Hello, Vikas. Do we have you online? I think we have lost contact with Vikas. Never mind. Happens in a live program like this. We'll try and get him back in due course. And now let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Global crude oil prices rose for the sixth straight week after top producers Saudi Arabia and Russia extended supply cuts through September, adding to undersupply concerns. It is the longest streak of weekly gains this year. Brent crude oil futures have risen 17% and WTI by 20% in the last 6 weeks. Brent ended the week at $86.24 per barrel on Friday, while US crude closed at $82.82 per barrel. Both benchmarks hit their highest level since mid-April on Friday. Saudi Arabia on Thursday extended a voluntary oil production cut by 1 million barrels per day to the end of September, keeping the door open for another extension. Russia has also elected to reduce its oil exports by 300,000 barrels per day next month. UBS said Brent prices may touch $90 per barrel in the coming months. And we have Vikas who has rejoined us from Kolkata. Good evening, Vikas, and shoot your question quick. Yes, Vikas, do we have you online? Hello? No, I think we have lost contact with him. Never mind. Happens, as I said. Yeah, Dhirendra, to talk about the markets, one quick comment from you. Very quick comment. At these levels, what should the retail investors be doing? Hello, Dhirendra. I think we have lost contact. कोई बात नहीं रंगा, जैसा कि आपने बताया कि लाइव प्रोग्राम में ये होता है कि कई बार फोन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है. वैसे वक्त भी खत्म हो रहा है, हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा. हमारे तमाम श्रोता हमसे जुड़े और आपने म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल पूछे. सवालों के जवाब धीरेन्द्र कुमार जी ने दिए. धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोतागण आपका मार्केट मंत्रा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone for redevelopment of 508 railway stations under Amrit Bharat Station Scheme. Foreign investors pump in nearly 47,000 crore rupees into the Indian equities market in July, and global crude oil prices rise for the sixth straight week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock market. आज के लिए इतना ही. कल शाम 6:30 बजे शेयर मार्केट खुले रहेंगे. कल सप्ताह के पहले दिन हम उन पर चर्चा करने के लिए और श्रोताओं को सवाल पूछने के लिए भी आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर जुड़ेंगे. तो श्रोता, आप इंतजार करिए. कल यानी सोमवार शाम 6:30 बजे तक. फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. मेरे पास मनपसंद जॉब तो है, लेकिन पेंशन नहीं है. मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, पर मेरे पास पेंशन नहीं है. आप लोगों की परेशानी का समाधान है LIC's न्यू पेंशन प्लस, जो देता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ गारंटीड एडिशंस और साथ ही पार्शियल विड्रॉल भी. इस पॉलिसी के निवेशित पोर्टफोलियो में निवेशित राशि का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा. बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें. LIC हर पल आपके साथ. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.